اب مرزا کیا کہتا ہے یہ پہلے مرزا کی گفتگو سن لیں, پھر میں انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. اور میں اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہو کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں, کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا. اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے. مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں, اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں, کبھی دوستوں کے اندر, کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں, اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. حالانکہ قرآن کی آیت ہے, ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے. خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں, اشرف تھانوی صاحب کا اٹھا لیں, جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں, فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں, سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں, میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام دے دیے. یہ آیت پڑھے گا اور آگے کہتا ہے جو بھی ترجمہ اٹھانا ہے اٹھا لے, خواہ مولانا احمد رضا خان کا اٹھا لے آئیں, یہ ترجمہ کنز الایمان شریف لے آئیں. سمجھتا ہے کہ ساری عوام الو بیٹھی ہوئی ہے. آگے سنیے جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. سورہ اعراف آیت نمبر 188 جو میں نے شروع خطبے میں بیان کر دیا کہ لو اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا لاستکثرت من الخیر, تو میں بڑی سی خیر اکٹھی کر لیتا. اب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا, وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا, الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہے. تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا. یعنی جب رسول اللہ کو اپنی جان کے بارے میں بھی نفع نقصان کا آپ مالک نہیں رکھتے تو کسی کو نفع دینا تو بڑی بات ہوگی. انشاءاللہ اگلا جمعہ میں نفع پہ لگاؤں گا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی بخاری شریف سے. کس سے؟ انشاءاللہ یہ 2-4 درس ہمارے بخاری شریف سے چلیں گے, اس سے پتہ چلے گا امام بخاری کٹر ٹھیٹھ سنی تھے. اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی, یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا, جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں, نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے, اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا, نہیں, آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا. یہ کبھی ہم نے دعویٰ کیا کہ نبی پاک کو اب اللہ سے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا, محبوب پیارے دعا کیا کر, ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماتا جا. اور ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے لمحے گزرتے گئے اور گزرتے جائیں گے, قیامت تک رسول اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ رب کی رحمت کے محتاج ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں اب نہیں کبھی درس میں وہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا اصل میں عقیدہ کیا ہے. یقین ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا. تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا. ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ. کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈیفرنس ہے, لیکن جب ڈیفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا. تو جیسے آپ یہ بات کریں کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں, آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے. ناپا تو آپ نے خود ہے, آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے, تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا. کہا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور رسول اللہ کے علم میں کتنا فرق ہے, جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. یہ بھی اس کی بے وقوفی ہے, کم علمی ہے. بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے, اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بن رہی, میں نیچے وہ سکین بھی لگا دوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق کے سامنے رسول اللہ کا علم ایسے ہے جیسے سب انبیاء, اولیاء, فقہاء, فلاسفہ, عقلاء سب کا علم اکٹھا کر لیا جائے وہ ایک قطرہ ہے, اور رسول اللہ کا علم اس کے مقابلے میں ایک سمندر ہے. اور رہا رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے آگے, فرمایا کروڑا سمندر. تو نے تو ایک سمندر کہا, اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کروڑ ہا در کروڑ ہا سمندر ایک طرف ہو, رسول اللہ کا علم اس علم الہی کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں, وہ نسبت بھی نہیں ہے. اور اس نے کیا سمجھا, پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی. بغیر استادوں کو جو علم حدیث اور علم کلام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے 1100 وولٹ کو ایک اناری جو ہے وہ ہاتھ لگا دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخیری وہ ماں کانا و یما یکون کا علم نکال لیتے ہیں. ماں کانا کا معنی جو ہو چکا اور
जो होने वाला है। रसूलुल्लाह जानते ये निकाल देते बरेलवी भाई, बरेलवी भाई नहीं निकालते, इमाम बुखारी भाई निकालते हैं, और इमाम बुखारी भाई नहीं निकालते, खलीफा दोम खलीफा सानी मुराद रसूल हजरत उमर इब्ने खत्ताब निकाल रहे हैं, और वो भी अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहे। हदीस नंबर क्या है? हदीस नंबर 3192 बयान किया हजरत तारिक बिन शिहाब ने, समेत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक़ूल, मैंने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को ये कहते हुए सुना, कामा फीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना अन बदल खल्क़ि हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़ व नसिया मन नसिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान खड़े हुए, मखलूक की इब्तिदा से लेकर जहां से मखलूक की इब्तिदा हुई हुजूर बयान करते रहे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, करते करते रसूलुल्लाह ने क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद हर जन्नती के जन्नत में जाने, हर जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक जो हो चुका था वो भी बयान कर दिया, जो होने वाला था वो भी बयान कर दिया। ये मैंने क्या पढ़ा है? ये हदरत बुखारी, हजरत फारूक आजम रवायत करते हैं। हजरत फारूक आजम हदीस नंबर लिख लें 3192 कहते हैं, काम फीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना बदल खल्क़ि हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। मैं इस हदीस पे अब वो उसका इस्तेदलाल भी पेश करता हूं। हम पे वो तोहमत लगाता है, वो तोहमत हम पर नहीं है, वो तोहमत सहाबी रसूल हजरत फारूक आजम पर है, वो तोहमत इमाम बुखारी पे है, वो तोहमत इमाम मुस्लिम पे है, इमाम तिरमिज़ी पे है, लाखों मुहद्दिसीन पे है, जिनका अकीदा है कि रसूलुल्लाह मा काना भी जानते हैं, व मा यकूना भी जानते हैं, जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला लाए कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक साहबी रवायत करते हैं, हदीस नंबर है 1246। अच्छा, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने मुबारक में मोता के मकाम पे जंग के लिए सहाबा इकराम का लश्कर तैयार किया और उन पर निगरान बनाया, सिपा सालार बनाया ज़ैद बिन हारिसा को, और फरमाया अगर ये शहीद हो जाए तो फिर जाफर झंडा संभाले, जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाले, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो जाए फिर मुसलमान जिसको चाहे अमीर बना दे। अब ये 3000 का लश्कर मोता के मकाम पे पहुंचा। 800 किलोमीटर का फासला मदीना मुनव्वरा से। हजूर मस्जिद नबवी में बैठे मदीना मुनव्वरा में, उधर जंग शुरू हुई। हजरत सैयदना अनस कहते हैं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने फरमाया अखज़ अर्रायत ज़ैदुन, फरमाया झंडा ज़ैद ने संभाल लिया, झंडा ज़ैद ने संभाल लिया। फिर फरमाया फउसीबा, ज़ैद शहीद हो गए, ज़ैद शहीद हो गए। सुम्मा अखज़ जाफरुन, फरमाया झंडा अब जाफर ने संभाल लिया, और थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया फउसीबा, जाफर भी शहीद हो गए। फिर फरमाया सुम्मा अखज़हा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, फरमाया अब झंडा अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया फउसीबा, वो भी शहीद हो गए। कितने? 3। वइन्ना ऐनय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतज़रिफान, हजरत अनस कहते हैं जैसे जैसे हुजूर इनके बारे में बताते गए, हुजूर की आंखों में ज़ारो कतार आंसू भी जारी थे। सुम्मा अखज़ खालिद इब्न वलीद, सुम्मा अखज़ खालिद इब्न वलीद मिन गैर इमरातिन फफुतिह लहू, फरमाया अब झंडा खालिद इब्न वलीद ने पकड़ लिया। किसने? क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया था? नहीं फरमाया, उधर खालिद ने पकड़ा, खालिद ने पकड़ लिया है। और आगे जो लफ्ज कहे हैं, फरमाया गैर इमरातिन, फरमाया मशवरा भी नहीं हुआ, बगैर मशवरे के खालिद ने झंडा पकड़ लिया, बगैर मशवरे के खालिद ने झंडा पकड़ लिया। फरमाया फफुतिह लहू, और उनको फतह भी नसीब हो गई। इमाम बुखारी का क्या अकीदा है? रसूलुल्लाह कुछ नहीं जानते, रसूलुल्लाह सब कुछ जानते, कई मीलों से उस मंजर को देख भी रहे हैं, बयान भी फरमा रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक हरफ ही अपनी सदाकत है। हाँ, कोई ऐसा बद दिमाग जो इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की बाज आयतों को अपने हक में समझे और समझ के गलत तशरीहात करे, तो हमारे यहाँ बाज जो हैं वो खुताबा शायद इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें डर है कि ये आयतें मखसूस फ़िरके के लिए है। कुरान फ़िरकों के लिए नहीं आया, हुदल लिन्नास, ये दुनिया भर के लोगों की हदायत के लिए आया। अगर अपनी कम इल्मी है उन बंदों की, दोनों जानिब से, एक है हमारे स्टेजों में इस आयत का तलावत ना होना और दूसरों का बकसरत करना। अगर यूं ही हो तो फिर तो यहूदी भी इस्तेदलाल कर सकते हैं, ईसाई भी इस्तेदलाल कर सकते हैं। मसलन ईसाई कहेंगे कि तुम्हारे कुरान के अंदर हजरत यसू मसीह के बारे में आया है कि वो अल्लाह का एक जुज़्व है, अल्लाह का एक हिस्सा है, तुम कैसे इनकार कर सकते हो।
ये देखिए जी सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते आ गए मरियम के पास और मरियम से कहने लगे, ए मरियम, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन्हु, कि अल्लाह तुझे एक ऐसे कलमे की बिशारत देता है जो उसमें से होगा। तो पता चला कि यस्सु मसीह तो अल्लाह का, गॉड का एक टुकड़ा है, एक जुज़्व है। बताइए इसकी क्या दलील हो सकती है? क्या हम कुरान की इस आयत का इनकार कर दें? इनकार करने वाला क्या होगा? काफिर हो जाएगा। अब जो इस्तिदलाल इस आयत से उस क्रिश्चियन ने किया, क्या उसका इस्तिदलाल दुरुस्त है? वो भी दुरुस्त नहीं है। तो मालूम हुआ कि कुरान का इनकार करना भी गलत है और वो माना मुराद लेना भी गलत है जो माना मुराद क्रिश्चियन ने लिया है। माना मुराद हकीकी लिया जाएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां बयान फरमा रहा है। इसलिए फरमाया फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं है उनसे पूछो जो अहले जिक्र है, जो अहले जिक्र है। और अहले जिक्र कौन है? जिक्र खुद कुरान का नाम है, जिक्र खुद कुरान का नाम है। बार बार अल्लाह ने इसको जिक्र फरमाया और सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को नाज़िल फरमाया। तो कुरान का नाम क्या है? जिक्र। और फरमाया जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं तुम जिक्र वालों से पूछो, यानी कुरान वालों से पूछो, जो कुरान फहमी रखते हैं, कुरान के मानी और मतालिब में उन्होंने जिंदगियां बसर की और कर रहे हैं, उनसे माना समझो कि क्या है। अब ये आयत है, इसका सादा सा तर्जमा सुन ले, फिर मैं तर्जमा इसका करूंगा और कुरान की बाकी आयत को मिला के करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ आयत नंबर 188 में फरमाता है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ऐ महबूब आप फरमा दे, ला अमलिकु, मैं मालिक नहीं हूं, मैं इख्तियार नहीं रखता, लिनफ्सी अपनी जान का, मैं अपनी जान का भी इख्तियार नहीं रखता, नफ़अन ना नफा का रखता हूं, वला दर्रन और ना ही नुकसान का रखता हूं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जो अल्लाह चाहे, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तकसरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सा खैर इकट्ठा कर लेता, वमा मस्सनी यसू, और मुझे कोई तकलीफ भी ना पहुंचती। यदि मुझे इल्म होता कि अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, बस मैं रोड पे निकलूंगा, उधर से ट्राला आएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, जिस बंदे को ये इल्म हो क्या वो निकलेगा? बोलिए, नहीं निकलेगा। अच्छा, इन नाना इन ला नज़ीरुम व बशीर, मैं नहीं हूं मगर डर सुनाने वाला और बशारतें सुनाने वाला, लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान लाने वाली है। अब ये आयत पढ़ के कहेंगे कि ना नबी को इख्तियार है ना नबी के पास इल्म गैब है। अब तवज्जो है? अब मैं हदीस की तरफ नहीं आता, मैं फिर भी कुरान ही पढ़ूंगा। ये एक आयत ज़हन में रखनी है। अब आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये आयत क्या बताती है कि नबी के पास इख्तियार भी नहीं है, नबी के पास इल्म गैब भी नहीं है। आइए तीसरा सिपारा है, सूरह आले इमरान है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, व रसूलन इला बनी इसराइला, ये आयत नंबर 49 है। अन्नी कद जितुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बनी इसराइल की तरफ रसूल बन के आया हूं। अन्नी कद जितुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ए बनी इसराइल वालों मैं तुम्हारे पास अपने रब की निशानियां लेकर आया हूं। पहली निशानी, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनी कहयतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी में से एक परिंदे की मूरत बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो सचमुच अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाजत से एक उड़ने वाला परिंदा बन जाएगा। ये पहली निशानी। वह उबरियुल अकमहा, और मैं अकमह जो मादरजाद अंधे हैं उनको भी ठीक कर दूंगा। वह अबरसा जो कोरज़दा मरीज हैं मैं उनको भी ठीक कर दूंगा। वह उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से ही मैं मुर्दों को भी जिंदा कर दूंगा। कितने हो गए भाई? 4। पांचवा फरमाया वह उन्नब्बियुकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और जो तुम घरों में से खा के आते हो और बाकी छोड़ के खाना आते हो, मैं ईसा तुम्हारा खाया हुआ खाना भी तुम्हें बताऊंगा, छोड़ा हुआ खाना भी तुम्हें बताऊंगा। अब ये गैब की बात है कि नहीं? बोलिए भाई, ये गैब की बात है जो कौन बता रहे हैं? हजरत ईसा। अब कुरान की ये आयत सूरह आराफ 188 क्या कहती है? वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता होता तो मैं बहुत सा खैर इकट्ठा कर लेता। कुरान की ये आयत बज़ाहिर उनके मुताबिक कह रही है कि इल्म गैब नहीं, लेकिन सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है। एक और मकाम पे चलते हैं, सूरह मरियम रकू नंबर 2। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम रकू नंबर 2 में फरमाया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा के आपकी वालिदा कौम के पास आई, उन्होंने कहा, कौम ने कहा कि ऐ मरियम ये तूने क्या किया? या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन, तेरा बाप बुरा आदमी नहीं था, वमा कानत उम्मुकी बगिया, तेरी माँ भी ऐसी वैसी नहीं थी, तो तुम ये बच्चा कहां से उठा लाई? बिन ब्याही, बिन निकाह के। फाशारत इलैहि, तो हजरत मरियम ने गोद की तरफ इशारा किया, हजरत ईसा की तरफ, यानी मुझसे ना पूछो मैं कहां से लाई, इसी से पूछो ये कहां से आया।
उन्होंने कहा कई का नुकल्लिमु मन कान फिल मादी सबीया, ये उठा दे कि जो गोद में छोटा सा बच्चा बेसमझ लेटा वो कैसे बोल सकता है, हम उससे कैसे कलाम कर सकते हैं। काला, अल्लाह फरमाता है अब हजरत ईसा गैब की खबरें देने वाले, एक दिन का बच्चा है और गैब की खबरें दे रहा है। नंबर एक फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वातानी अल किताबा, उसने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाया है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी रहूंगा साहिब बरकत ही रहूंगा। 4 व औसानी बिस्सलाते व ज़काते, उसने मुझे हुक्म दिया है, वसीयत की है किसकी, नमाज की और ज़कात की, मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और नमाज फर्ज होती है बालिग के ऊपर, नाबालिग पे नमाज फर्ज नहीं होती, और ज़कात फर्ज होती है उस पर जो बालिग भी हो, दौलत वाला भी हो। तो हजरत ईसा का ये 2 खबरें देना इस बात की दलील है, वक्त आएगा मैं बालिग भी बनूंगा और फिर एक वक्त आएगा मैं बालिग भी बनूंगा, दौलतमंद भी बनूंगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाएं, आप बालिग तो हुए पर दौलतमंद, बोलिए भाई, आपका तो अपने पास मकान भी नहीं था, लेकिन क्या हजरत ईसा की ये खबर गलत है? नहीं, अभी आसमान पे है, जब वो नाजिल होंगे पूरी दुनिया के बादशाह बनेंगे तो दौलतमंद भी बनेंगे। फरमाया बर्रम भी वालिदती, और मुझे इस बात की उसने वसीयत की है, हुक्म दिया है कि मैं अपनी मां के साथ उसने सलूक करूं, बाप का नाम ही नहीं लिया। यानी वो जान गए हैं, अल्लाह ने उन्हें बता दिया है कि तुम बिन बाप के पैदा हुए हो। वजअलनी जब्बारन शकिया, और मैं बदबख्त भी पैदा नहीं हुआ, जब्बार भी, मुतकब्बिर भी और अकड़ने वाला भी पैदा नहीं हुआ, आजिज पैदा हुआ हूं। वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु, सलामती हो उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, जिस दिन मैं फौत हो जाऊंगा, व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। अब बताइए, ये एक दिन का नबी है और गैबी खबरें दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब ये कुरान की आयत सूरह आराफ, लौ कुन्तु आलमुल गैबा, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं खैर इकट्ठा कर लेता। पता चला जी नबी के पास इल्म गैब कोई, खुद समझते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। असल में बात यह है, मैं आपको समझाता हूं, बात यह है कि अगर मेरे पास कोई आए और कहे कि हजरत आप मुझे जो है वो 1000 रुपया दे दें, और मेरा मकसूद उसको देना ना हो, तो 2 लफ्ज हैं, या तो मैं कहूंगा मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। अगर वो वाकई मेरे पास है तो मैं कहूं मेरे पास नहीं, तो ये क्या होगा? बोलिए भाई, झूठ होगा। लेकिन मैंने उसको देने भी नहीं है, मैं जुमला ही ऐसा बोल रहा हूं उसको देने भी ना पड़े, झूठ भी ना हो, तो मैं कह दूं अगर मेरे पास 1000 रुपया होते तो मैं जड़ावाला ना चला जाता। बोलिए भाई, अगर मेरे पास 1000 रुपया होते मैं जड़ावाला ना चला जाता। अब यहां इनकार भी है, इस बात भी है। वो कैसे? मैंने ये कब कहा कि मेरे पास नहीं है? और अगर वो बंदा मुझे जड़ावाला देख ले तो इसका मतलब है मेरे पास 1000 हैं तो मैं जड़ावाला गया हूं। और दूसरा माना है वक्त तौर पर, वक्ती तौर पर तो नहीं है, मुझे यहां किसी ने खिदमत कर दी, मेरे पास 1000 रुपया, मैं जड़ावाला चला गया। अभी नहीं थे, बाद में हो गए, तो मैं जड़ावाला जब गया, अब वो क्या समझेगा कि बगैर 1000 रुपए के चले गए। माशाल्लाह पेट्रोल काफी कीमत पे है, आने जाने पे 1000 लग जाता है कि नहीं लग जाता? अच्छा, अब उसने मुझे जड़ावाला देखा या मुझसे पूछा आप किधर है, मैंने कहा मैं जड़ावाला हूं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 1000 था तो मैं जड़ावाला आया ना। अब यहां हुजूर क्या फरमाते हैं, महबूब तू कह दे अगर मेरे पास गैब होता तो खैर होता। अब देखिए हुजूर के पास खैर है कि नहीं है? खैर है कि नहीं है? अब कुरान क्या कहता है, सूरह बकरा है, अगर खैर नहीं तो गैब भी नहीं, अगर खैर है तो गैब भी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, ये 2 पारा है, इरशाद फरमाया कि मैं योतिल हिकमा, जिसको हमने हिकमत अता की उसको हमने खैर कसीर अता फरमाया। इरशाद फरमाया, दुरूद पढ़ने सलातो व सलाम तीसरा सिपारा आयत नंबर 269, फरमाया युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। वह मैं युतल हिकमता, वो जिसको हिकमत देता है। अब रसूल पाक के पास हिकमत है कि नहीं है? बल्कि हिकमत ऐसी है कि हिकमत है भी और हिकमत बांटते भी हैं। खुद कुरान कहता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते वक्त कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए अल्लाह अब इन्हीं के अंदर एक शान वाला रसूल भेज, यानी आखिरी ज़मान नबी भेज दे। वो क्या करे, यतलु अलैहिम आयातिका, तेरी आयत की तिलावत भी करे, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और कौम को किताब भी सिखाए, हिकमत भी सिखाए। हिकमत वही सिखा सकता है जिसके पास हिकमत हो, के बेहिकमत हिकमत सिखा सकता है। हिकमत वही सिखाएगा ना जो साहिबे हिकमत होगा। और अल्लाह फरमाता है मैं योतल हिकमता, जिसको हिकमत दी गई है, फकत ऊतिया खैरन कसीरा,
उसे खैर कसीर दिया गया है। और कुरान सूरह आराफ की आयत कहती है कि जिसके पास गैब हो खैर कसीर होगा, और जिसके पास खैर कसीर हो उसके पास हिकमत होती है। पता चला कि रसूलुल्लाह के पास हिकमत है, हिकमत को रब ने खैर कसीर कहा, और जिसके पास खैर कसीर हो उसके पास इल्म गैब होता है। अब दो आयतों को मिलाए मफहूम वाज़ेह हो गया। ये मैंने आयत क्यों चुनी? इसलिए चुनी कि ये शवालुल मुकर्रम है और इस महीने की 15 तारीख को हजरत इमाम बुखारी की विलादत हुई है और ईद वाले दिन हजरत इमाम बुखारी की वफात हुई है। और आपने उमूमन सुना होगा कि जब भी शवाल का महीना आता है हर जगह पे पूरी दुनिया के अंदर दौरा बुखारी शरीफ करवाया जाता है। तो मैंने भी आज आपको दौरा बुखारी शरीफ करवाना है। करेंगे भाई? 10 हदीसें पढ़ूंगा बुखारी शरीफ से और फिर हम पता चलेंगे कि ये जो इल्म गैब वाली वो दिन रात आयतें पढ़ते हैं, इमाम बुखारी ने क्या समझा हुआ है। इमाम बुखारी पर फिर फतवा लगाए। हम रसूलुल्लाह का इल्म मानकर अगर मुशरिक हो गए तो इमाम बुखारी फिर बचेंगे? नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो फरमाए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन, नबी पाक अलैहिस्सलाम 2 कब्रों के पास से गुजरे। फकाला, और फरमाया अब कब्र बंद है, अंदर मुर्दे हैं, अंदर क्या है? मनो मिट्टी के नीचे। हजूर ने फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़िबान व मा युअज़्ज़िबान फी कबीरन, फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है और बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, इनको अजाब हो रहा है। अब अजाब मनो मिट्टी के नीचे है, उनको हो रहा है, हुजूर ये भी देख रहे हैं, हुजूर ये भी जान रहे हैं इनको अजाब हो रहा है, और कैफियत अजाब भी जान रहे हैं और असबाब अजाब भी जान रहे हैं कि अजाब का सबब कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं है बल्कि छोटे छोटे गुनाह हैं। अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, फरमाया इनमें से एक अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और वह अम्मल आखिर फकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा चुगली किया करता था। अब मुझे बताएं, एक अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, ये माजी की खबर है कि नहीं? दूसरा चुगली खाया करता था, ये भी माजी। पता चला हुजूर उनका माजी भी जान रहे हैं, हाल भी जान रहे हैं। आगे क्या फरमाया, सुम्मा खज़ा जरीदत रतबा, हुजूर ने एक सरसब्ज़ो शादाब एक टहनी जो है वो उतारी, फशक्कहा निस्फ़ैन, दरमियान से उसको 2 टुकड़े कर दिया उस टहनी को, फ़अज़ारा फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा, और हर एक की कब्र के ऊपर गाड़ दिया। कालू या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आपने क्या किया, इसकी क्या हिकमत है? फरमाया लअल्लहु युख़फ़्फ़िफ़ु अन्हुमा मा लम यही बसा, फरमाया जब तक ये टानियां तर रहेंगी इनसे अजाब हल्का रहेगा। अच्छा क्या हो, किस सबब से अजाब आया? उनके करतूत बता दिए, टला रहेगा मुस्तकबिल भी बता दिया, अब हो रहा है हाल भी बता दिया। तो हुजूर माजी भी जानते हैं, हाल भी जानते हैं और मुस्तकबिल भी जानते हैं। हजरत इमाम बुखारी, ये हदीस नंबर है 218, सही बुखारी की 218। अब हदीस नंबर है 418, वो 218 ये 418, कुर्बान जाए। ये हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, पीछे सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ी। तफसील मुस्तदरक में आई है, जब ताजदार कायनात ने सलाम फेरा, पिछली सफ से एक शख्स को खड़ा किया, फरमाया तू नमाज में क्या कर रहा था? तू नमाज में क्या कर रहा था? इमाम अगली साफ में होता है या पिछली साफ में होता है? पहली साफ में होता है, आगे होता है, और इमाम को तो पीछे नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या हो रहा है, चाहे जाके दूसरी तीसरी आखिरी सफ हो। हजूर आखिरी सफ से बंदे को उठा रहे हैं, फरमाया तू नमाज में क्या कर रहा था? और साथ ही फरमाया हाल तरौना किबलत हा होना, तुम समझते हो कि नमाज में मेरा चेहरा काबा की तरफ रहता है? फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रकूकुम वला खशूकुम व इन्नी ला अराकुम वराई मिन ज़हरी, फरमाया खुदा की कसम ना तुम्हारे रकू मुझसे पोशीदा है, ना तुम्हारी दिल की बातें मुझसे पोशीदा है। जिस तरह मैं अपने सामने से देखता हूं इस तरह अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं। यकीन का कीदा हजरत इमाम, बोलिए हजरत इमाम बुखारी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि तआला बयान करते हैं, हजरत अबू सईद अल खुदरी से रवायत है 447, हदीस नंबर 447। आप बयान करते हैं कि जब मस्जिद नबवी की तामीर होने लगी, ईंटें उठाई जा रही थी, हर साहबी एक एक ईंट उठा के लाता, हजरत अम्मार इब्न यासर 2-2 ईंटें उठा के लाते। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मार को देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मार की उम्र एक ही थी। ये बात याद है, हजरत अम्मार उतनी ही उम्र के हैं, उसी साल पैदा हुए जिस साल नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो हजरत अम्मार को देखा, वो 2-2 ईंटें उठा के ला रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही अम्मार तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार, फरमाया अम्मार पे अफसोस हो, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल कर देगी, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ दावत देंगे, वो इन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देंगे। और हजरत अम्मार
फौत नहीं हुए, बल्कि हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ से उनकी हुकूमत में, उनकी खिलाफत में जंगे सिफीन में मौला अली की तरफ से शहीद हुए। और हजरत हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तुझे कोई काफिर गिरोह भी कत्ल नहीं करेगा, मुशरिक भी कत्ल नहीं करेगा, ईसाई भी कत्ल नहीं करेगा, यहूदी भी कत्ल नहीं करेगा, करेंगे वो जो कलमा भी पढ़ते हैं और खलीफा राशिद के खिलाफ वो उठे हुए होंगे, तुझे वो मुसलमान ही कत्ल करेंगे। आप मुझे बताएं ये हदीस क्या बताती है? इमाम बुखारी का कीदा है, हजूर आने वाले हालात भी जानते हैं, कौन किस हाल में और कहां मरेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और हदीस नंबर है 1052। हदीस बड़ी लंबी है, बहरहाल इस हदीस का टुकड़ा यह है कि सूरज ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण हो गया। नबी पाक ने बड़ी तवील नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद फरमाया इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियां, दो निशानियां हैं। ला यक्सिफानी लिमौत अहदिन, ये किसी की मौत पर जो है वो ग्रहण नहीं इनको लगता। कोई मर जाए, बड़े से बड़ी शख्सियत भी दुनिया से चला जाए, ये जरूरी नहीं है कि सूरज ग्रहण लग जाए। और वला ली हयात ही, ना किसी शख्सियत के पैदा होने से ग्रहण लगता है। ये दोनों किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। अल्लाह ये ग्रहण लगाता है। फिर आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फाइदा रअयतुम ज़ालिका फज़कुरुल्लाह, फरमाया जब भी तुम सूरज को ग्रहण होते देखो, चांद को ग्रहण होते देखो, फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। किसको याद करना है? अल्लाह का। आगे क्या फरमाया? नबी पाक ने जब नमाज पढ़ी ना, तो नमाज में एक अमल शरीफ फरमाया। वो क्या? नमाज पढ़ते पढ़ते सरकार ने 2-4 कदम उठाए आगे और यूं हाथ किया जैसे किसी चीज को पकड़ रहे हैं, छोड़ दिया। ये अमल शरीफ सहाबा ने पीछे जमात में देखा। इससे पता चला सहाबा इकराम की नमाज़ें ख्याल मुस्तफा में ही होती थी, तसव्वुर मुस्तफा में होती थी। अब वो जो मौलाना कहते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, अबू बकर अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान समेत तमाम सहाबा की नमाजों पर क्या फतवा लगेगा? अब उन्होंने क्या किया? राईना का तनावल तशय्यन मिन फी मकामिक, या रसूलल्लाह हमने आपको देखा कि आप अपनी जगह से आगे गए, अपनी जगह से आगे गए और फिर आपने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की। सुम्मा राईना का था, फिर हमने आपको देखा कि आप पीछे हट आए। वजह क्या थी? फरमाया इन्नी रईतुल जन्नत फतनावलतु उनक़ुदन, फरमाया मैंने जन्नत को देखा। ये जन्नत किधर है? सातों आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास है जन्नतुल मावा। मैंने नमाज में, मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में जन्नत को देखा। फरमाया जन्नत मेरे इतने करीब आई, फरमाया मैं चाहता तो अंगूरों का एक खोशा तोड़ लेता, इतनी जन्नत करीब आई। इससे कही जाता है कि तस्वीर आगे आई। मैं पूछता हूं, तस्वीर में अंगूर भी बने हों, कोई अक्लमंद उसको छूता है? बताइए। बच्चे को पता होता है यार ये तस्वीर है, चाहे जाके रसूलुल्लाह को इल्म ना हो कि तस्वीर आई है कि हकीकत आई है। रसूलुल्लाह का पकड़ना इस बात की दलील है। तस्वीरें जन्नत नहीं की गई, हकीकत जन्नत मुस्तफा के आगे की गई है। वलौ असबतु लअकलतु मिनहु मा बकियत दुनिया, अगर मैं उसको तोड़ लेता तुम खाते रहते जब तक दुनिया रहती, वो अंगूरों का खोशा खत्म ही ना होता। क्योंकि जन्नत की किसी चीज को कोई जवाल है नहीं है, जन्नत की कोई चीज मिटने वाली नहीं है। फरमाया वह उरी तुन्नार, मैंने जहन्नम को भी देखा, जहन्नम मेरे आगे कर दी गई, जहन्नम को मुझे दिखा दिया गया। फलम आरा मंजर कल यौम कत्तो अफजा, फरमाया जितना आज मैंने डरावना मंजर जहन्नम का देखा, इससे पहले मैंने कभी जहन्नम का इतना डरावना मंजर नहीं देखा। आगे फिर वो रवायत लंबी है। इससे पता चला इमाम बुखारी का अकीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मकाम पे बैठे जन्नत को भी देख रहे हैं, जहन्नम को भी देख रहे हैं, और चाहे तो हाथ उठा के जन्नत की नेमतों को भी हासिल फरमा रहे हैं।